So let's say we have an object like this, and this is the direction from which we are observing. Okay, I'll give you the dimension, that is the width is 40, the height is also 40 mm, and the length, that is also, let's say, 40 mm. Okay, and the step size, that is the height of the step, that is 20 mm. Sir, Yes. sir, this was done actually on Yeah. Friday's lab. ओके, और कोई एग्जांपल किया था हमने Yes, लैब sir. मेन्यू? Cylinder. Yes, sir. Yes, sir. Cylinder That cylinder. and From lab 3D object. manual. And from lab manual, we have taken one example. ओके, लैब मेन्यू का एग्जांपल किया था. Yes, sir. ओके, सो अच्छा, हमने मर्ज किया था क्लास में, उसमें दिया था, राइट राइट. ओके, ऑलराइट. सो आपको बेसिक आइडिया आ गया, राइट? सो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल. सी बैच का जो आपको है फर्स्ट प्रॉब्लम, ओके, इन विच वी हैव टू कंस्ट्रक्ट front view, top view and right hand side. Okay, so from this direction if we will observe, we will have the front view. Top से हम देखेंगे, that will be top view, and right hand side view बनाना है, जो इसमें अभी विजिबल नहीं है, बट आपको विजुअलाइज करके बनाना. ओके, so you try this example first, all right, and then we will discuss about this. ओके, तो सबसे पहले आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड side, ठीक है, and then we will make these three views as well as the right hand side. ठीक है, so सबके पास पेन एंड पेपर है. ओके, so I will give you 5 minutes और 10 minutes. ठीक है, तो उसमें आप ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू पहले बनाओ. ठीक है, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं. एंड टुडे वी विल आल्सो कवर द सेकंड पार्ट ऑफ ऑर्थोग्राफिक, दैट इज सेक्शनल ऑर्थोग्राफिक. ओके.
रोल है। यस, ये एग्जाम्पल हो गया। किसी ने ट्राई किया? Yes, sir. Those who have completed, you can share your picture in the chat box. Easy है? Yes, Shivam. Sakshi. Ayushi. किसका कंप्लीट हो गया? देवराज. Yes. Harsh. If nobody is replying, then I will not take the attendance for today. Darsh. Am I audible? Yes, sir. रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा? हर्ष, आपका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. हो गया. All right. So it's front view. Front view में क्या आएगा? Length and height, right? So we will be able to see this face as well as ये जो slot दिया है that will appear as a rectangle, right? So if I draw the reference line, that is XY. So front view will be over this side because we also have to draw the right hand side view, and front view will appear like this. Okay, and the
triangle face that we have cut, that will appear as a rectangle. Okay, top view में क्या आएगा? So again we'll be able to see this. तो ये पोर्शन भी पूरा रेक्टेंगल दिखेगा. This will also appear as a rectangle. So I'll take the projections. And this part that will appear as a triangle. Okay, and जो bottom face पे जो slot दिया है, so that will not appear, so that we will have to draw as a dash line. Okay, now right hand side view. तो right hand side view कैसे बनाएंगे? So again I will take the projections. एंड यहाँ से हम प्रोजेक्शंस रोटेट करेंगे. Okay, then this face that will also appear as a rectangle. So I'll take the projection. And this triangle will not be visible from the right side, right? तो वो जो हम बनाएंगे that should be dash line. So again I will take the projection. तो इतना जो पोर्शन आएगा that will be dash line. Okay, so this will be our front view, this will be the top view, and over here we will have the right hand side. Okay, so I guess now you are able to draw the orthographic projections, right? इसमें आपको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? Okay, so I guess now you are able to draw any of this orthographic projection, right? Now we will see the second part of it, that is sectional orthographic. Okay, तो ये जो हमने किया that was we were just drawing the views, like जो भी views हमें पूछे हैं front view, top view and side view, so that we will represent with the help of orthographic projection, right? Now in second part if you will see, तो तीनों बैचेस में जो सेकंड प्रॉब्लम होगा उसमें कहीं पे सेक्शनल मेंशन किया होगा.
ओके, सेक्शनल का मतलब ये है कि वी विल कट दिस स्पेसिमेन एंड देन वी विल ऑब्जर्व। ओके, फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड प्रॉब्लम है उसमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, टॉप व्यू ड्रॉ करना है एंड सेक्शनल लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो इफ यू लुक एट द फिगर, यहाँ पे हमें इस डायरेक्शन से फ्रंट व्यू दिया है, राइट? So we will be able to draw the front view as we are conventionally drawing. Similarly top view, but left hand side भी हमें sectional बनाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक section line दिया है, right? This A line is given. This A line represents the section. इसका मतलब क्या है कि इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे जो सेंटर लाइन दिया है वहाँ से उसको कट करेंगे और कट करने के बाद जो हमें दिखेगा उसको हम साइड व्यू में कंसिडर करेंगे। ओके, सो सेक्शनल का मतलब ये होता है कि जो भी कटिंग प्लेन हमें दिया है वहाँ से हम स्पेसिमेन को कट करेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ दी व्यूज। ओके, फॉर एग्जांपल ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? अब सपोज इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, सेंटर से। ओके, सो सेक्शन लाइन हम कैसे बनाते हैं? सो द सेक्शन लाइंस आर थिक एट द एंड्स, एंड पे वो थिक हो, राइट? सो दैट रिप्रेजेंट्स कि हमें यहाँ से सेक्शनल व्यू बनाना है, राइट? सो अगेन इसका मुझे अगर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बनाना है तो वो हम जनरली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, राइट? तो इसका फ्रंट व्यू एज इट इज जैसे हमने आगे बनाया था। टॉप व्यू विल ऑल्सो बी द सेम, इसमें हम कट नहीं कर रहे हैं। ओके, बट साइड व्यू में हम इसको सेंटर से कट करते हैं। अब जब हम इसको सेंटर से कट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? सो इट विल अपीयर लाइक दिस। अब इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, राइट? बिकॉज उसको हमने कट किया। ओके, सो कट करने के बाद सिर्फ इतना ही पोर्शन बचेगा। नाउ ये सरफेस हमने कट किया तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी विल ड्रॉ द लाइंस एट 45 डिग्री एंगल, जिसको हम बोलते हैं हैचिंग लाइन। तो ये जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट रिप्रेजेंट्स हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन ये इंडिकेट करती है कि आपका जो स्पेसिमेन है वो यहाँ से कट किया होगा। ओके, तो जितनी भी सरफेस कट होगी वो सारी सरफेस हमें हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो साइड व्यू आएगा इट विल बी लाइक दिस। ओके, द ओनली चेंज इज इसको हमने कट किया है तो उसको हम हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। Okay, so now this is sectional left hand side. Okay, so this is the only change in the sectional view orthographic, जिसमें कोई एक व्यू हम सेक्शन करके मतलब उसको कट करने के बाद उसको हम ड्रॉ करें। ओके, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So draw this example and we will also look at the cylinder one, cylinder वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था। Now what is the use of this sectional is जब भी कोई surface is which is not visible, right? जैसे हम जो surface visible नहीं होता उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, right? So when the front view or top view gets complicated, मतलब बहुत सारी अगर
नॉन विजिबल लाइंस होंगी तो वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई, राइट। तो तब हम ये सेक्शनल व्यू यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ देर आर थ्री रूल्स इन सेक्शनल ऑर्थोग्राफी। फर्स्ट वन इज, जो भी सरफेस कट होगी उसको हम हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। So every surface that is being cut, that is represented by the hatching line. Hatching line हम कैसे represent करते हैं, तो उसको हम 45 डिग्री पे ड्रॉ करेंगे, ओके। और दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm हम रखेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जो हैचिंग लाइन्स है वो 45 डिग्री एंगल पे हम ड्रॉ करेंगे और दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm हम रखेंगे, ठीक है। सो दैट इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज, सेक्शनल व्यू में हम कभी भी डैश लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें हमें कोई सरफेस जो विजिबल नहीं है तो उसको भी हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सेक्शनल व्यू में। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में अगर होगा तो दैट इज फाइन, बट सेक्शनल व्यू में हम कभी भी डैश लाइन यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इसके अंदर कोई भी डैश लाइन नहीं आएगा, इवन इफ देयर इज अ पार्ट विच इज नॉट विजिबल, ठीक है। क्योंकि हम सेक्शनल इसलिए बनाते हैं सो दैट जो पार्ट विजिबल नहीं है उसको हम देख पाए, राइट। एंड द थर्ड रूल इज, every part which has less than 8 mm thickness, less than 8 mm to 10 mm, okay, that is considered as rib or support. Okay, for example, uh, ऐसा कोई पार्ट है, राइट, एंड हियर देयर इज द रिब इज गिवन। तो ये जो पोर्शन है इसकी थिकनेस होगी 8 to 10 mm, राइट। तो ऐसा जो पार्ट है ये जनरली इसलिए हमने रखा है सो दैट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सरफेस को सपोर्ट कर सके, राइट। तो जब भी कोई 90 डिग्री एंगल पर सरफेसेस होंगी तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम ये रिब यूज करते हैं, राइट। तो रिब के अंदर हैचिंग लाइन नहीं आएगी, ओके। सो देयर विल बी नो हैचिंग लाइन इन रिब और सपोर्ट। Okay, so these are the three rules that we will consider when we are drawing the sectional view. फर्स्ट, कि जो भी पोर्शन कट हो रहा है उसको हम हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हैचिंग लाइन का मतलब क्या है, तो जो सरफेस कट हो रही है उसको हम 45 डिग्री एंगल पर लाइंस बनाएंगे जो सेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, ओके। और उन दोनों के बीच का जो गैप है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 mm हम रखेंगे, राइट। तो ये आपको मेजर करके ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 mm जितना गैप रखना है, ठीक है। देन सेकंड इज, सेक्शनल व्यू के अंदर कोई भी डैश लाइन नहीं है। इसका मतलब इवन इफ देयर इज अ पार्ट दैट इज नॉट विजिबल, बट सेक्शन व्यू में उसकी हम डैश लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ओके। एंड
जब भी कोई ऐसा पार्ट है जो एज अ सपोर्ट या फिर जिसको हम रिब बोलते हैं, ओके, तो इसको अगर हम कट करेंगे तो इसका सेक्शनल व्यू कैसा आना चाहिए? इट शुड बी लाइक दिस, ये रिब है, राइट। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे हम हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। बट यहाँ पे रिब भी कट हो रहा है, राइट। सेंटर से अगर हम कट करेंगे तो रिब भी कट होगा, बट उसके अंदर हम हैचिंग लाइन नहीं दिखाएंगे क्योंकि इट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, उसकी थिकनेस बहुत ही कम है, राइट। तो ऐसा कोई पार्ट है जिसकी थिकनेस कम है और वो भी कट हो रहा है, तो उसके अंदर हैचिंग लाइन हम नहीं दिखाएंगे, राइट। अगर हम हैचिंग लाइन दिखाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये सॉलिड पार्ट है, और अगर हैचिंग लाइन नहीं दिखाई है इसका मतलब ये है कि ये जो पार्ट है इट इज एज अ सपोर्ट, ओके। सो आई विल शो यू अनदर एग्जांपल जो हमने सिलेंडर वाला किया था। ओके, सो लेट्स से दिस इज द फ्रंट डायरेक्शन, यहाँ से टॉप व्यू आएगा एंड फ्रॉम दिस डायरेक्शन इट विल बी द लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको मैं सपोज यहाँ से कट कर रहा हूँ फ्रॉम दी सेंटर, तो ये जो कट करने की बात है वो हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा, राइट। तो अब इसके अगर हम व्यूज बनाएं तो क्या होगा? फ्रंट से हमें एज अ सिलेंडर दिखेगा, मतलब एज अ रेक्टेंगल दिखेगा। टॉप व्यू में हमें सर्कल्स दिखेंगे 2, एंड साइड व्यू विल आल्सो अपीयर एज अ रेक्टेंगल, ओके। तो अब हम जहाँ पे कट कर रहे हैं वो फ्रंट व्यू की पैरेलल में है, राइट। सो हमें फ्रंट व्यू जो है वो सेक्शनल फ्रंट व्यू मिलेगा, एंड टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू विल रिमेन एज इट इज, ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर लाइन आएगा, देन इनर पार्ट जो है दैट इज नॉट विजिबल, मतलब अंदर का जो सरफेस है होलो सिलेंडर का, सो दैट विल नॉट बी विजिबल, तो उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। अब जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद ये कैसा दिखेगा? इट विल अपीयर एज अ हाफ सिलेंडर, ओके। और जब हम इसको कट करेंगे तो सिर्फ ये 2 सरफेस कट होंगी क्योंकि होलो सिलेंडर है तो अंदर का पार्ट तो ऑलरेडी कट किया हुआ है, राइट। तो वो फिर से कट नहीं हो रहा है, ओके। तो अब जब हम इसका सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कैसा आएगा? सो अब हम इसको अगर फ्रंट व्यू में ऑब्जर्व करें तो पहले जो ये अंदर की सरफेस थी वो विजिबल नहीं थी, बट नाउ आफ्टर कटिंग नाउ इट इज़ विजिबल, राइट। तो पहले हम जो डैश लाइन रिप्रेजेंट करते थे अब उसको हम सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज नाउ इट इज़ विजिबल, ओके। और ये सरफेस कट हो चुका है, मतलब ये सरफेस कट हो रहा है, तो उसको हम हैचिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, okay. So this will the sectional front view will look like, टॉप व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू एज इट इज रहेगा, सिर्फ फ्रंट व्यू में चेंज आएगा क्योंकि हमने उसके पैरेलल कट किया है, ठीक है। और कट करने के बाद ऐसा हमें फ्रंट व्यू मिलेगा, ओके। सो ये आप ड्रॉ कर दो, and in next lecture we will see some examples of this जो लैब मैनुअल में एग्जाम्पल
आपको दिए हैं सेक्शनल के, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, राइट? सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल फिनिश दिस चैप्टर ऑर्थोग्राफिक, ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट विद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है? सो ये सारे जो प्रॉब्लम्स आपको दिए हैं लैब मैनुअल में, राइट, तो उसको आप लैब की जो स्केचबुक है उसमें डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना, राइट, और अब ट्राई करना सो दैट कोई भी अगर डाउट हो तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर सकें, ओके? तो लैब के जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ ईच एंड एवरी बैच, ए बैच का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? तो इसको विथ डायमेंशंस ड्रॉ करना। सेकेंड इज सेक्शनल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस आल्सो यू कैन ट्राई, नहीं है, ओके, तो ये आप अपने आप से ट्राई कर सकते हो, राइट? दिस इज अगेन सेक्शनल ऑर्थोग्राफी, एंड ये जो प्रॉब्लम है जो अभी हमने किया आज, तो ये भी आप डायमेंशन के साथ ड्रॉ करना, तो आपको आइडिया आ जाएगा, ओके? सो ए बी एंड सी बैच का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड प्रॉब्लम जो है दैट इज सेक्शनल ऑर्थोग्राफी, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके? Alright, so today we will end the session over here. Okay, I'll just take the attendance. So, okay, so today we will end the session over here. Okay, next lecture में आप ऑर्थोग्राफी के प्रोजेक्ट एग्जांपल्स जो है वो ट्राई करना, and if you have any doubts, so that we will solve in the next lecture. Okay, all right. So I will see you in the next lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.